Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, the screen is visible to you. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so regarding this scapulohumeral articulation, you all of knowing this joint is the ball and socket joint, okay? And only one capsule, one type of capsule is present, and that is, anybody can answer? Anybody? One type of ligament, not capsule. One ligament is present, and that Capsular ligament. Capsular ligament. capsular ligament. Okay, in this joint only one ligament is present, that is capsular ligament. Okay, now so one thing I want to let you know here, what is capsular ligament? Actually, capsular ligament is the outer part of the joint capsule. Okay, it is the outer fibrous layer of the joint capsule. All of you know that joint capsule has two parts. One is outer, that is made up of collagen fibers, okay, and can be called as capsular ligament, and another is the synovial membrane. ठीक है, तो synovial membrane जो secrete करती है, कल मैंने बता दिया है, that secretes the this hyaluronic acid, okay, as well as lubricin is secreted by the this cells of the this synovial membrane, as well as the cells of the synovial membrane, they engulf the debris. ठीक है, जो भी wear and tear होता है तो उनके debris को भी they engulf. Means these cells are, some of the cells are macrophage like cells. So type A cells and type B cells are present. Okay. Then just in brief about this joint, shoulder joint, it has been written here. What I told you in the last class. Okay, the same thing has been written here. This shoulder joint is ball and socket joint. Another name is ball and socket is anarthrosis. Okay, and the bones involved means articular surfaces which are involved for the formation of the shoulder joint are glenoid cavity of scapula and head of humerus. ठीक है, this thing all of you know. ठीक है, ligaments में only capsular ligament present. ठीक है, then movements polyaxial means it is slight movements of all the times. ठीक है, like extension, flexion, then this abduction, adduction. All these movements are possible in this type of joint because this joint is ball and socket joint. ठीक है, तो no collateral ligaments are there or no restriction for the side to side this joint. ठीक है, तो hence because only capsular ligament is there and that lead to the all the type of this movement. Okay, as well as this position of this joint is not fixed because you know this forelimb is attached to the trunk with the help of muscles. Okay, then when the limb moves, okay, so this joint also moves along with the limbs. Okay, why? Because this is not fixed. There is no bony articulation between the scapula and the this trunk. Okay, so hence the position of this joint is also variable. Hence, it has been written the position of this joint is not fixed because both the bones can move as none of the bones articulates with the axial skeleton. Okay, is it clear about this? Because these two bones, scapula and humerus, they are attached to the trunk with the help of only muscles. Okay, as per the contraction of the muscles, this joint is also movable. कभी rib के किस level पे रहेगा, थोड़ा सा कभी आगे चला जाएगा, तो hence the position is movable. क्लियर हो गया? ठीक है, तो ट्रंक के साइड में रहेगा लेकिन पोजीशन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है. व्हाई? बिकॉज दिस टू बोन्स दे आर अटैच्ड टू द ट्रंक विद द हेल्प ऑफ मसल्स. तो एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग शोल्डर जॉइंट? फिर आगे बढ़ते हैं. मैम, यस मैम, some students want to join the class. ओके ओके, ठीक है. तो नाउ नेक्स्ट जॉइंट, एनी डाउट रिगार्डिंग शोल्डर जॉइंट? Bones involved, cartilage. I will show this cartilage, the color of the cartilage in the last at the end of the class. Okay, I have some samples or some specimen along with me. Okay, after this PowerPoint this presentation, I'll show this how this cartilage is visible. Bluish tinge is visible. Okay, actually, okay, so that I will show at the end of the class. Students, they are getting okay.
Now next joint, that is elbow joint. ठीक है, after shoulder joint you know very well that is the elbow joint. Can you name the bones involved in the formation of the elbow joint? Anybody? Humerus, radius, Radius and ulna. ठीक है, तो here you can clearly see the picture. This is the distal end of the humerus. ठीक है, आपने पढ़ा होगा trochlea and capitulum. ठीक है, two parts of the distal end of the humerus. ठीक है, तो laterally having capitulum and medially this trochlea pulley-like structure is visible. ठीक है, तो this is the distal extremity of the humerus which is seen here. Can you see the cursor? I am moving here. Can you see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दिस इज द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस. ठीक है, और यहाँ तक भी पार्ट जाएगा बट दैट इज कवर्ड विद द दीज मसल्स. दीज आर दी सम कट पोर्शन ऑफ द मसल्स आर देयर. ओके, ये एक्सटेंसर मसल है जो कि कटी हुई यहाँ से. ठीक है, दिस इज द बाइसेप्स ब्रेकाई विच इज द इंसर्शन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई हियर. ठीक है, तो वो अलग चीज है. बट यू सी द बोन, दिस इज, ये हटा देंगे तो दिस होल इज द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस. ठीक है, तो एज यू नो डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस इज हैविंग this pulley-like structure medially, that is known as trochlea, and laterally capitulum. ठीक है, so these two ends are there. With these ends, these two structures articulate with the proximal extremity of the this radius which is having correspondingly facets. ठीक है, अगर यहाँ पे पुली लाइक स्ट्रक्चर है तो वहां पे क्या होगा, ग्रूव होगा, मतलब जो रिज होगी. ठीक है, तो this is the proximal extremity of the radius. ठीक है, तो this radius and humerus they articulate with each other. ठीक है, apart from this there is another articulation present here in the elbow joint which is present between the radius and ulna. Although here in case of ox, ठीक है, the maximum portion get fused. Radius and ulna, ठीक है, there is ossification takes place between these two. ठीक है, ये तो मसल और लिगामेंट का पार्ट है, ये इसको हटा के अगर देखें तो this is the radius, here is the ulna. ठीक है, except some proximal portion, this portion is not ossified, means there is no ossification takes place between the, or no fusion takes place between the radius and ulna. ठीक है, आपने रेडियस एंड अल्ना बोन देख लिए. ठीक है, तो प्रॉक्सिमल पोर्शन में देयर इज नो एज सच ऑसिफिकेशन टेक्स प्लेस, मींस हियर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट. ठीक है, तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ द फेसेट ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस इन दिस पोर्शन ओनली. ठीक है, ठीक है, एंड दिस पोर्शन इज प्रेजेंट अबव द इंट्रोसियस फोरामेन, proximal interosseous space, and there is another distally present that is known as distal interosseous space. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए in this joint, elbow joint, two joints are there. One is present between the humerus and radius, another is present between the radius and ulna. ठीक है, clear हुआ? Humerus and radius के बीच में one joint, another is between the radius and here is the lateral collateral ligament. ठीक है, when we cut out this ligament, अगर इसको हटा के देखेंगे, there is another ligament present between the ulna and radius. This is 13 number. This is known as archiform ligament. ठीक है, तो we can divide this joint into two parts. One is radial articulation, another is radio-ulnar articulation. ये clear हुआ? Elbow joint has two components. ठीक है, one joint which is formed between the humerus and radius, that is known as humero-radial articulation. ठीक है, and this type of joint is the is the hinge joint. ठीक है, between the humerus and radius joint is hinge joint. ठीक है, hinge joint का मतलब क्या होगा, एक ही साइड मूवमेंट होगी, बैक साइड में नहीं होगा, इधर नहीं खुलेगा, ये ह्यूमरस इधर नहीं जाएगी. ओके, so this is hinge type of joint is there. Another joint which is present between the radius and ulna. ठीक है, between the radius and ulna, it has two components. One portion which is in the proximal part of the radius and ulna, that is having the synovial joint. ठीक है, because there is no ossification takes place, and the ligament which is present is archiform ligament. You can see here. ठीक है, और इसके नीचे जो होगा between the radius and ulna, complete ossification takes place. Initially that is the this amphiarthrosis, means initially cartilaginous joint होता है, बाद में fibrous joint हो जाएगा, means there is complete ossification
टेक्स प्लेस बिटवीन द रेडियस अल्ना। आपने देखा होगा ऑक्स की जो रेडियस अल्ना है वो अलग नहीं कर सकते हम। Why? Because they get fused and there is ossification takes place between the shaft of the radius and ulna. ठीक है, initially that is these two bones are cartilage. Embryonic stage में क्या होते हैं? All the bones are cartilage. Hyaline cartilage होते हैं ना, तो इसको अपन कह सकते हैं initially the joint is amphiorthosis because these two are the cartilage. ठीक है, and after birth ossification takes place and यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा fibrous joint बन जाएगा, they get ossified and there is fusion takes place between the this radius and ulna. Okay, तो यहाँ तो fusion हो गया, ossification हो गया of the amphiorthosis, ठीक है, later on and these two bones they get fused. But in the upper part, जो ये part हटा के यहाँ पे देखेंगे, there is facet present in the anterior aspect of the ulna and the posterior aspect of the radius. और वहाँ पे joint होता है, slight movement is there. And there is formation of the joint capsule also. ठीक है, कहाँ पे, रेडियस और अल्ना के इन अपर पार्ट में हियर. When we remove this portion, ठीक है, तो between the radius and ulna, अल्ना का anterior portion and रेडियस का पीछे there is smooth articular area. Smooth हमेशा क्या बताया था आप लोग को, synovial joint होगा. ठीक है, तो only in this portion, upper portion joint is present, otherwise there is complete ossification, complete fusion of the these two bones takes place. ये 12 नंबर जो दिख रहा है ये मसल है बेटा, ठीक है, इसको मत इंक्लूड करो. तो here there is one, this is ulna bone and this is radius. तो नीचे आप जाओगे, आपने देखा होगा ossification means fusion takes place between the radius and ulna. ठीक है, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, this is this humero रेडियल आर्टिकुलेशन एंड सेकेंड जॉइंट इज रेडियो अल्नार आर्टिकुलेशन. ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है आपको बता देती हूँ. अच्छा, ये 7 नंबर जो दिख रहा है, दिस इज एक्सटेंसर मसल. ठीक है, दिस इज एक्सटेंसर मसल जो कि ऑफ द दिस फोरआर्म एंड मैनस से नीचे तक जाती है. मसल दिख रही है बिहाइंड 8. ठीक है, दिस इज एनकोनियस मसल because you have not studied the muscle. ठीक है, तो here this is enconius muscle. One red coloration here is visible. This is the insertion of the triceps brachii. Triceps brachii muscle ऊपर से आती है. ठीक है, तो enconius olecranon process of the ulna that gives insertion to the triceps brachii. तो ये जो red color दिख रहा है, that is also the part of the muscle. तो ये रेड मसल का पार्ट है, ये मसल का पार्ट है. Here also this is the insertion of the biceps brachii muscle. This is also red coloration is the part of the muscle. Here this is also muscle. ये जो मसल जा रही है ये फ्लेक्सर मसल जा रही है, सॉरी एक्सटेंसर मसल जा रही है अप टू द डिजिट, जो मैंने अभी नहीं पढ़ाई है. ओके, तो जॉइंट आप देखोगे तो 2 कंपोनेंट्स ऑफ दिस जॉइंट, एनीबॉडी कैन नेम देम. एल्बो जॉइंट के 2 कंपोनेंट बता दो. रेडियो अल्नार एंड ह्यूमरल रेडियल आर्टिकुलेशन. रेडियो अल्नार एंड ह्यूमरल रेडियो आर्टिकुलेशन. ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन एंड सेकंड इज रेडियो अल्नार. पहले ह्यूमरो रेडियल बोलेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे, तो ये दोनों हो गया, फिर रेडियो अल्नार आर्टिकुलेशन. ठीक है, तो इन नेक्स्ट स्लाइड आपको बता दे रही हूँ. हियर ओनली लिगामेंट्स आर सीन. ठीक है, तो दिस इज द ह्यूमरस बोन. ठीक है, इसमें आपको और क्लियर दिख रहा है, दिस इज द ह्यूमरस बोन, दिस इज द रेडियस बोन, हियर इज द अल्ना बोन. ठीक है, तो इन ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन, ठीक है, द लिगामेंट विच इज प्रेजेंट. ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, दिस लिगामेंट इज लेटरल कोलैटरल लिगामेंट. दिस इज द लेटरल कोलैटरल लिगामेंट. सिमिलर टाइप ऑफ लिगामेंट इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड. ये अपन बाहर की तरफ देख रहे हैं. ठीक है, तो दिस जॉइंट दैट इज द ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन इज सपोर्टेड बाय 2 लेटरल लिगामेंट्स. ठीक है, तो वन is the lateral collateral ligament and the same ligament which is present towards the medial side, अंदर की तरफ उधर होगा, and that is known as medial collateral ligament. ठीक है, तो इनका ओरिजिन कहाँ से होगा, distal end of this lateral to the this epicondyles. ठीक है, और at the epicondyle corresponding epicondyles, lateral तो lateral side से होगा, medial वाला medial से होगा. ठीक है, and these 2 ligaments they insert on the corresponding side of the radius. अगर कोलेटरल लिगामेंट लेटरल होगा तो लेटरल साइड में जाके इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, और अगर मीडियल वाला होगा तो मीडियल साइड में अपर पार्ट ऑफ द रेडियस में जाके अटैच हो जाएगा. एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन लिगामेंट्स में? किसी को कोई कंफ्यूजन? बिकॉज दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज हिंज जॉइंट, गिंगलिमस जॉइंट है. ठीक है, तो इसका जो फ्लेक्शन होगा, एंगल यहाँ पे कम होगा. एंगल कहाँ कम होगा, यहाँ पे. इसके पीछे जो है ये ह्यूमरस पीछे नहीं जा सकती. ठीक है,
यहाँ झुक सकती है, मीन्स एंगल बिटवीन द ह्यूमरस एंड रेडियस लाइक दिस, ठीक है। अगर ये और इधर जाएगी तो देयर इज डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन द ह्यूमरस एंड रेडियस, आगे की तरफ, ठीक है। तो दिस, अगर ये नीचे ये दोनों का एंगल कम होगा, दैट इज नोन एज फ्लेक्शन। व्हेन एंगल गेट इंक्रीज, तो दैट इज नोन एज एक्सटेंशन। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन? आर्टिकुलर सरफेस तो होंगे ही, ठीक है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज भी होगा रेडियो ह्यूमरल में, सॉरी ह्यूमरो रेडियल में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द रेडियो अल्नार आर्टिकुलेशन। तो रेडियो अल्नार आर्टिकुलेशन जो है द साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन द अपर पार्ट, यहाँ पे ही होता है। अदरवाइज दिस इज अ प्रॉक्सिमल इंटरॉशियस स्पेस, उसके नीचे जाने के बाद देयर इज ऑसिफिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। दीज टू बोन्स दे गेट फ्यूज्ड हियर। तो बिकॉज हियर देयर इज अ जॉइंट, तो ligament which is present between the ulna and radius, that this ligament is curved type ligament that extends from the olecranon process of the ulna and joined to the this lateral surface of the this radius, ठीक है। सिमिलर आर्चिफॉर्म लिगामेंट दैट ये लेटरल साइड में होगा, तो उस साइड मीडियल साइड में भी होगा, दैट इज अ मीडियल आर्चिफॉर्म लिगामेंट। हियर इज द लेटरल आर्चिफॉर्म लिगामेंट दैट एक्सटेंड फ्रॉम द olecranon process up to the corresponding side of the radius, ठीक है। तो this joint जो है, this is the ligament of the radio ulnar articulation, ठीक है। तो यहाँ slight movement takes place between the radius and ulna. Otherwise the distal portion, this whole नीचे पूरा portion जो होगा, that is ossified, okay. Initially it is amphiarthrosis and later on ossification takes place, ठीक है। तो दो जॉइंट में आपको लिगामेंट आपने देख लिए, क्लियर? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? Here is the write-up of the same thing which I have explained in the diagram. The same thing has been written here. You can see this is the first is the, पहले आपको देखा, फर्स्ट इज द ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज हिंज जॉइंट, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्डाइल्स ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है, एंड द रेडियस, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द रेडियस एंड कॉन्डाइल्स ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। And in this the Anconius process and seminal lodge of proximal end of ulna also, slight part जो रहेगा ulna का, that also takes part in the formation of this joint, although I have not explained, ठीक है। तो slightly जो थोड़ा जो Anconius process beak like process होती है ulna की, that is also having smooth articular area that also involved in the this articulation, but we call it as a humero radial articulation, ठीक है। देन लिगामेंट कैप्सुलर तो हो गई, क्योंकि सभी में होता है मेनली कैप्सुलर लिगामेंट दैट फॉर्म्स द दिस ट्यूब लाइक कवरिंग ओवर द बोन्स, ठीक है। देन लेटरल कोलेटरल लिगामेंट एंड मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स आर प्रेजेंट, जो दिखा दिया आपको, एंड मूवमेंट्स इन दिस जॉइंट, बिकॉज दिस जॉइंट इज द हिंज जॉइंट और गिंगलिमस जॉइंट, तो एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन होगा। इसमें किसी को डाउट? डायग्राम भी देख लिया, अब राइटअप भी देख लिया। नो मैम, नो डाउट। बोन्स अच्छे से याद है आप लोग को? बोन देखी थी सारी कि भूल गए? If you know the bones properly, then only you are able to describe the joints, ठीक है। जब बोन्स याद नहीं रहेगी कि सेमिनल प्रोसेस क्या होती है, एनकोनियस प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, ऑलिक्रन प्रोसेस क्या होती है, रेडियस में कैसे फेसेट होते हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा तभी आप जॉइंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बोन्स अगर यहाँ सामने होती तो आप फिर से देख लेते जॉइंट के लिए। नहीं तो मुझे बोन्स फिर लानी पड़ेगी। तो ये क्लियर हो गया। देन अनदर आर्टिकुलेशन जो है, that is radio ulnar articulation, means the articulation which takes place between the radius and ulna, ठीक है। radius and ulna आपको पता है, in case of ox and horse, this radius and ulna they are ossified, means we can't separate the radius and ulna bone, ठीक है। दोनों अलग अलग नहीं होती, डॉग में अलग होगी। In case of dog, radius and ulna bone they are separately present, but in case of ox and horse, because the ossification takes place between the shaft of the
shaft or diaphysis of the radius and ulna. ठीक है, तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है एम्फीआर्थ्रोसिस इन यंग वंस एंड सिनर्थ्रोसिस इन एडल्ट्स. ठीक है, एम्फीआर्थ्रोसिस मतलब बिकॉज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, यंग स्टेज में क्या होता है, जो दोनों बोन्स है वो कार्टिलेज फॉर्म में होती है, आपको पता है. ठीक है, ऑल दीज बोन्स दे आर हाइलिन कार्टिलेज इन इनिशियल स्टेज. ठीक है, तो हेंस द नेम इज एम्फीआर्थ्रोसिस. एम्फीआर्थ्रोसिस मींस कार्टिलेजिनस जॉइंट. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीआर्थ्रोसिस? दैट इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट. ठीक है, एंड इन लेटर स्टेज, ठीक है, बिकॉज ऑसिफिकेशन टेक्स प्लेस, फाइब्रस जो है जॉइंट बीच में फाइबर्स रहेंगे, तो दिस बिकम्स द सिनार्थ्रोसिस. देयर इज नो मूवमेंट टेक्स प्लेस इन दिस. ठीक है, और दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते इन एडल्ट स्टेज. इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम. अब इस नाम पता चल रहा है रेडियो अल्नार आर्टिकुलेशन, तो इसमें लिखा बोन्स इन्वॉल्व मींस आर्टिकुलर सरफेसेस. तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस. ठीक है, एज यू नो द रेडियस के पीछे होती है अल्ना. ठीक है, तो पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द अल्ना. ये आपने अगर रेडियस अल्ना देखी होगी तो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी बोन्स, पूरा का पूरा शाफ्ट इन्वॉल्व होता है इसमें. ठीक है, not the proximal and distal extremity जैसे दूसरे जॉइंट में, because those joints are movable joint, but here because दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो जा रहा है. फ्यूजन का मतलब कि सिनार्थ्रोसिस फॉर्मेशन हो रहा है, ऑसिफिकेशन हो जाएगा लेटर ऑन. तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि जो है completely this shaft of the radius as well as the shaft of the ulna, they take part in the formation of the joint. ठीक है, तो रेडियस के पीछे ulna है, तो posterior surface of the radius and anterior surface of the ulna involved in the formation of this type of joint. ठीक है, लिगामेंट्स, कैप्सुलर लिगामेंट तो होगा क्योंकि ऊपर की पार्ट में मैंने बताया था, बिकॉज जस्ट अबोव द प्रॉक्सिमल इंट्रोशियस स्पेस. याद आ रहा है कुछ बोन से? प्रॉक्सिमल इंट्रोशियस, डिस्टल इंट्रोशियस स्पेस नहीं याद आ रहा? यस मैम, दोनों बोन्स के बीच में बॉक्स में जो होता है डिस्टल बोन दिखाने के लिए निकालना पड़ेगा. ओके, तो क्योंकि प्रॉक्सिमल साइड में तो बिकॉज जस्ट अबोव द प्रॉक्सिमल जॉइंट there is slight movement is there, और वहां पे joint synovial joint बन रहा है, hence there is capsular ligament which is present between the radius and ulna, only restricted only up to the upper part. ठीक है, just above the proximal introitious space because slight movement takes place. तो क्योंकि वहां पे synovial joint बन रहा है, तो radius ulna के बीच में कैप्सूल फॉर्म में joint कैप्सूल बनेगा, hence capsular ligament is present. ठीक है, second is introitious ligament. Introitious ligament यहाँ पे नहीं होगा upper part में. इंट्रोसियस लिगामेंट कहाँ पे होना चाहिए? एनीबॉडी? दोनों बोन्स के बीच में. हाँ, दोनों, तो नीचे की तरफ साइनोवियल पोर्शन में नहीं, जहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, जहाँ पे सिनर्थ्रोसिस हो रही है ना, रेडियस अल्ना के बीच में जहाँ मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, एट दैट एरिया इंट्रोसियस लिगामेंट इज प्रेजेंट. ठीक है, नॉट इन द अपर पार्ट, बट रेस्ट अपर पार्ट छोड़ दो जहाँ पे स्लाइट मूवमेंट इज देयर, और बाकी पोर्शन में इंट्रोसियस लिगामेंट प्रेजेंट विच कनेक्ट्स द टू बोन्स. ठीक है, फाइबर्स होते हैं कोलेजन फाइबर्स मेनली. ठीक है, और वो क्या करेंगे, दोनों बोन को जोड़ देंगे, फ्यूज कर देंगे कहना चाहिए, रेडियस एंड अल्ना को, और बाद में उसके ऊपर ऑसिफिकेशन हो रहा है. ठीक है, तो इंट्रोसियस लिगामेंट होगा बिटवीन द शाफ्ट ऑफ दीज टू बोन्स. एंड आर्चिफॉर्म लिगामेंट एज यू हैव सीन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ऑलिकरन प्रोसेस टू द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ द रेडियस. तो ये वाला जो है ये साइनोवियल जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, मतलब उसके साइड से जाएगा. कैप्सुलर लिगामेंट भी जॉइंट कैप्सूल बन रहा है, तो ये दोनों अपन कह सकते हैं दिस इज फॉर द ट्रू साइनोवियल जॉइंट. ठीक है, वहां पे जो अपर पार्ट में इंट्रोशियस प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट वेयर दीज टू बोन्स दे गेट फ्यूज्ड. ठीक है, वेयर द सिनार्थ्रोसिस प्रेजेंट. सिनार्थ्रोसिस जहां पे होगा वह इंट्रोशियस होगा. कैप्सुलर लिगामेंट एंड आर्चिफॉर्म लिगामेंट कहाँ होगा? जहां पे अपन जो साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट है. ठीक है, और मूवमेंट आप देखोगे वेरी रिस्ट्रिक्टेड इन यंग काफ्स एंड इमूवेबल इन एडल्ट एनिमल्स. आपने देखा है कि मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, जैसे हमारे केस में वी आर एबल टू मूव अवर हैंड. ठीक है, आपने देखा होगा अवर हैंड कैन मूव. वी हैव prone position, supine position. Anybody knows about this? What is prone? What is supine position? Anybody? Prone क्या होता है? Supine position क्या होता है? नो मैम पता नहीं. तो प्रोनेशन और सुपिनेशन सुना है. हाँ, supine prone पढ़ा है ना, supination and pronation क्या होता है? What is this? These two terms. मैम पाम के रिस्पेक्ट में बोला जाता है हमें. तो अपनी पाम मूव हो रही ना,
हम लोग कहते हैं beggars come to you with supine position. beggars जब आते हैं आपको मांगते हैं ना, तो they comes to you with supine position, मतलब आपका हथेली का जो हिस्सा होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, दैट इज नोन एज सुपाइन पोजिशन. फिर उसको टर्न करके आप उल्टा ले लोगे, ठीक है, तो दैट इज नोन एज प्रोन पोजिशन. तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग this position is possible. Why? Because radius and ulna, these two bones are not fused. ठीक है, in our case radius and ulna bones are not fused, hence the movement is possible. दोनों बोन जो है रेडियस अल्ना जो है एक दूसरे पे मूव कर सकती है, तभी हमारा हाथ जो है प्रोन एंड सुपाइनेशन कंडीशन में आ पा रहा है. बट एनिमल में आपने देखा है कि ऐसे करते हुए, ठीक है, एनिमल में पॉसिबल नहीं है. ऑल्दो डॉग में थोड़ा बहुत पॉसिबल बिकॉज दीज टू बोन्स आर सेपरेट, बट लार्ज एनिमल्स में बिकॉज रेडियस एंड अल्ना आर फ्यूज्ड, ठीक है, तो दोनों फ्यूज है और प्रॉन सुपाइनेशन पोजीशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो ये हो गया रिगार्डिंग दिस एल्बो जॉइंट. एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? अंकित, शिवम, शान, जोएल? नो मैम. ठीक है, जब मैं पढ़ा देती एक बार जरूर रीड करा करो, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा. इट इज नॉट द इजी वन, क्योंकि आपको रटना पड़ेगा इसमें. जब तक आप केवल क्लास किया और छोड़ दिया तो यू विल गेट फॉरगेट. ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जब भी क्लास हो तो उसको एक बार लिगामेंट के नाम पढ़ो. ठीक है, देयर आर सम टेक्निकल टर्म्स आर देयर, तो यू हैव टू स्टडी आफ्टर द क्लास. क्लास होने के बाद जस्ट एक बार रीड जरूर करा करो, क्या लिगामेंट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तभी तो कंफ्यूजन भी होगा कि कुछ चीज छूट गई है तो आप दूसरे दिन पूछोगे भी. ओके, नाउ the next joint after this elbow joint. Ankit, name the joint which is present after the elbow joint. knee joint. Knee joint. ठीक है, तो can you name the bones which are involved in the formation of the knee joint? Anybody? रेडियस अल्फा, वो रेडियस अल्ना एंड जो भी कार्पेल्स है, कार्पेल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्पेल, और मेटाकार्पल. मेटाकार्पल. ठीक है, तो दिस जो जॉइंट है दैट इज द नी जॉइंट, इज द कंपोजिट जॉइंट. ठीक है, इसमें ओनली सिंगल जॉइंट कैप्सूल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. जो साइनोवियर मेम्ब्रेन है वो 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है. ठीक है, एज पर द जॉइंट, क्योंकि 3 जॉइंट है. वन जॉइंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द रेडियस, अल्लाह भी दिखा दूंगी इस पावर पॉइंट में. वन जॉइंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना एंड फर्स्ट रो ऑफ कार्पल. ठीक है, so that joint is known as radio-ulnar carpal articulation, because this joint is present between the distal extremity of the radius and ulna and first row of carpal bones. Okay, can you name the carpal bones of the first row in ox? Name the Ma'am, radius ulna and accessory और एक और रेडियल अल्नार, इंटरमीडिएट और एसेसरी. मैम intermediate and accessory. If you take the name haphazard, तो you are not able to arrange the bones. तो आपको कभी भी name always take the name in sequential order. तो first from medial side to lateral side, we move from medial to lateral. ठीक है, तो first is the radial carpal, second is the intermediate carpal, third is the ulnar carpal, and fourth one is the anybody? एसेसरी कार्पल. Accessory carpal जो होगी that is present behind the ulnar. ठीक है, अपन एक ब्रिक लगाते जाएंगे लाइन से, पहले रेडियल लगाया, फिर इंटरमीडिएट लगाया, फिर अल्नार लगाया, पर अल्नार के बाजू में एसेसरी नहीं लगाएंगे. ठीक है, वी प्लेस द एसेसरी, ठीक है, बिहाइंड द अल्नार कार्पल. सपोज वी फिक्स द ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स एक प्रकार से, ठीक है, बिकॉज दीज आर स्मॉल बोन्स, शॉर्ट बोन्स है ना. ठीक है, तो वन इज रेडियल, जस्ट लेटरल टू द रेडियल वी फिक्स द अल्नार, द अल्नार इज द एसेसरी. ठीक है, तो यू कैन सी हियर द डायग्राम. और फिर सेकेंड रो की बताओ, एनीबडी? सेकेंड में न्यूमेरिकल ऑर्डर में है. ठीक है, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा? 1 2 3 4 होना चाहिए. 2 + 3 and 4. सेकेंड एंड थर्ड फ्यूज, बिकॉज फर्स्ट इज एब्सेंट इन केस ऑफ ऑक्स. ठीक है, तो इन केस ऑफ ऑक्स फर्स्ट इज एब्सेंट, सेकेंड एंड थर्ड फ्यूज एंड फोर्थ कार्पल. ठीक है, हो गई
टोटल 6 कार्पल बोन्स आर प्रेजेंट, ठीक है. देन आर्टिकुलेशन जो होगा ऑफ द नी जॉइंट, बिकॉज दिस नी जॉइंट इज द कंपोजिट जॉइंट, ठीक है. तो फर्स्ट जॉइंट जो बनेगा दैट इज बिटवीन द डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ द रेडियस एंड अल्ना एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी और प्रॉक्सिमल या कह सकते हैं प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन्स, ठीक है. सेकेंड जॉइंट दैट इज द इंटरकार्पल. हाँ, इंटरकार्पल, ठीक है. दैट इंटरकार्पल जो है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड रो ऑफ द this carpal bones, and third is the carpo metacarpal joint which is present between the carpal distal row of the carpal bones and proximal extremity of the large metacarpal. इसमें कोई confusion अगर आपको bones पता है तो? Any confusion regarding this? नो मैम. ओके, अब इसको देख लो, मैंने बता दिया, अब देखो इसको. डायग्राम क्लियर करा देते ना, एक मिनट स्ट्रेट बेटा. इसका डायग्राम हट गया ऊपर से, कोई बात नहीं, इसी को पहले देख लो, ठीक है. कार्पल जॉइंट और नी जॉइंट एवरीथिंग आई एक्सप्लेन यू, ठीक है. दिस जॉइंट इज कंपोजिट जॉइंट फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना कार्पल बोन्स इन टू रोज एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द मेटाकार्पल, ठीक है. बिल्कुल क्लियर है आप लोग को, बिकॉज बोन्स आर वेरी क्लियर टू यू, ठीक है. तो इसमें 3 जॉइंट पहले ही बता दिए, रेडियो अल्नार कार्पल आर्टिकुलेशन, then intercarpal articulation, then carpo metacarpal articulation, ठीक है. तो these 3 articulations are present in this joint, knee joint, ठीक है. टाइप ऑफ जॉइंट इज हिंज जॉइंट है, और मूवमेंट किस टाइप की होगी, अगर कार्पल के बीच में है तो जॉइंट द मूवमेंट इज ग्लाइडिंग, ठीक है. एक कार्पल बोन दूसरी बोन के ऊपर क्या करेगा, ग्लाइडिंग करेगा, ठीक है. अदरवाइज अगर आप देखोगे बिटवीन द रेडियस अल्ना एंड कार्पल, तो देयर इज वी कैन से एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन मूवमेंट इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है. आपके रिस्ट में आप देखोगे एक्सटेंशन फ्लेक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है, और ग्लाइडिंग मूवमेंट भी हो रही है रिस्ट जॉइंट में जैसे. तो सेम यहाँ पे भी होगा नी जॉइंट में, हालांकि रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, बट हिंज जॉइंट एज वेल एज द ग्लाइडिंग मूवमेंट इज टेक्स प्लेस, ठीक है. एक्सटेंशन एंड दिस फ्लेक्शन पॉसिबल होगा एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट्स आर पॉसिबल हियर. Before this, I would like to explain here, ठीक है. तो दिस इज द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, ये हो गया, दिस इज द अल्ना, ठीक है. स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना यहाँ तक आ रही है. ये प्रॉक्सिमल इंटरॉशियस स्पेस ये हो गया, डिस्टल ये हो गया जो मैंने पहले बताया था. तो प्रॉक्सिमल के पहले जो ये है ना एल्बो जॉइंट की बात करें तो हियर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, ठीक है. और दिस बीक लाइक प्रोसेस इज नोन एज एनकोनियस, जो मैंने बताया था, ठीक है. आप डायग्राम में नहीं देख पाए थे, दिस इज एनकोनियस, और दिस प्रोसेस इज द ऑलिक्रन प्रोसेस. दिस इज द ऑलिक्रन प्रोसेस, हियर दिस इज द एनकोनियस, बीक लाइक प्रोसेस इज द एनकोनियस, ठीक है. तो दिस सरफेस इज स्मूथ दैट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एल्बो जॉइंट. अब एल्बो को खत्म करो, दिस जॉइंट, दिस कंप्लीट, ये पूरा का पूरा जब सर्कल करेंगे तो दिस इज द नी जॉइंट एंड कंपोजिट जॉइंट comprised of the radius and ulna and the proximal row of the carpal bones, ठीक है. सेकेंड जॉइंट बिटवीन द प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन्स एंड डिस्टल रो ऑफ द कार्पल बोन्स, ये दोनों के बीच में जो जॉइंट बनेगा दैट इज नोन एज इंटरकार्पल आर्टिकुलेशन, ठीक है. देन बिटवीन द डिस्टल रो ऑफ द दिस कार्पल बोन्स, ठीक है, एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ द मेटाकार्पल, दिस इज अ थर्ड जॉइंट, ठीक है. तो इस तरीके से 3 जॉइंट बन गए, रेडियो अल्नार कार्पल आर्टिकुलेशन, इंटरकार्पल आर्टिकुलेशन एंड कार्पो मेटाकार्पल आर्टिकुलेशन, ठीक है. तो इसमें आप देखोगे जो मूवमेंट पॉसिबल है दैट इज ये दोनों साइड से पूरे कोलैटरल लिगामेंट आएंगे, तो हेंस हिंज मूवमेंट इज मींस एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन इज पॉसिबल, ठीक है. तो आगे की तरफ ये मूव कर सकता है, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन इज पॉसिबल इन दिस केस, ठीक है. नॉट एंटीरियर, पोस्टीरियर साइड में जाएगा बेटा, ठीक है. पोस्टीरियर साइड में एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन पॉसिबल होगा, एंटीरियर साइड में तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ठीक है. अच्छा, अब इसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ लिगामेंट्स आर द कोलैटरल लिगामेंट्स. ये यहां से कोलैटरल लिगामेंट दैट कम्स फ्रॉम द स्टिलॉइड प्रोसेस ऑफ द
ulna up to the proximal extremity of the metacarpal. ये पूरा common, this ligament is the lateral collateral ligament. जो lateral ligament लिखा हुआ है, this is the lateral collateral ligament. ठीक है, ये पूरा जॉइंट बनेगा ये पूरा. ठीक है, तो here this is the lateral collateral ligament. Similarly यहाँ आप देखोगे medial collateral ligament. Medial ligament जो लिखा है, this is the medial collateral ligament. ठीक है, तो ये दोनों लिगामेंट होने के कारण मूवमेंट इधर इधर नहीं हो पाएगी. ठीक है, जैसे बॉल एंड सॉकेट में तो दोनों लिगामेंट नहीं होते, तो ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर पॉसिबल बिकॉज दीज टू लिगामेंट दे रेस्ट्रिक्ट द लेटरल मूवमेंट. ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये जोड़ रहे हैं तो मूवमेंट लेटरल मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ओनली एंटीरियर पोस्टीरियर कह सकते हैं अपन, या कह सकते हैं कि बैक साइड में होगी, दैट इज द फ्लेक्शन. ओके, तो पहला लिगामेंट जो हो जाएगा इसमें this collateral ligament which is a common for three joints. ठीक है, the ligament which is common for all the three joint are the collateral ligaments. This is the lateral collateral ligament, this is the medial collateral ligament. मतलब वो distal extremity of the radius से आ रहा है up to the proximal extremity of the large metacarpal. ठीक है, this is the medial collateral ligament, this is lateral collateral ligament. Starts from the sigmoid process of the ulna because ulna lateral side में. ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा अप टू द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द लार्ज मेटाकार्पल. ठीक है, ये तो कॉमन लिगामेंट हो गया. अब क्या होता है जब ये आ रहा है तो ड्यूरिंग इट्स कोर्स, जब ये रन कर रहा है तो इट गिव्स प्रोसेस. तो यहां से क्या कर देगा, किसको देगा, ये वाली बोन कौन सी है, एनीबडी, लेटरल साइड है. वेयर माय दिस कर्सर इज प्रेजेंट, दिस बोन, कैन यू नेम दिस कार्पल बोन? अल्नार कार्पल. गुड. ठीक है, अल्नार कार्पल है. तो ड्यूरिंग इट्स कोर्स, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है, नीचे तो जा ही रहा है, तो ये इट गिव्स ब्रांचेस और सम फाइबर्स टू द अल्नार एज वेल एज पीछे की तरफ कौन सी होगी, एसेसरी. एसेसरी को भी दे देगा बिकॉज इसके जस्ट पीछे एसेसरी है. तो दिस लेटरल कोलेटरल लिगामेंट ड्यूरिंग इट्स कोर्स इट गिव्स सम फाइबर्स जोड़ने के लिए. ठीक है, टू द अल्नार एज वेल एज द एसेसरी कार्पल. ठीक है, और नीचे आया, नीचे आके किसको देगा फाइबर, सी वाली कौन सी है, फोर्थ. हाँ, फोर्थ कार्पल लेटरल साइड में. ठीक है, गुड. तो ड्यूरिंग इट्स कोर्स इट गिव्स टू द, पहले देगा दिस अल्नार एंड एसेसरी को एज वेल एज देन इट कम्स डाउनवर्ड्स एंड सम फाइबर्स गिव्स टू द फोर्थ कार्पल. ठीक है, क्योंकि उसको भी फिक्स कर. Okay, then medial collateral ligament. This is the medial collateral ligament. ठीक है, it extends from the distal extremity of the radius up to the proximal extremity of the large metacarpal bone. ठीक है, during its course it gives branches or fibers to the, this one is the, name the carpal bone. Radial. Radial, good. ठीक है, then it comes down and gives some fibers to the bone, distal row carpal bone. 2 plus 3. Second and third. Fused. Good. ठीक है, तो regarding collateral ligament everything is clear. ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, collateral ligaments. Apart from the collateral ligaments, some other ligaments are also present. जो आप देख रहे होंगे कुछ ब्लू कलर के दिख रहे हैं फाइबर्स. ठीक है, बिकॉज दीज आर द ब्रिक लाइक बोन्स. अगर आप ब्रिक का करोगे या ब्लॉक लाइक याद करोगे तो ब्लॉक लाइक बोन्स आर देयर, स्मॉल स्मॉल बोन्स आर देयर. ठीक है, तो इनको अपने आप पे फिक्स रहना है. अगर इनके बीच में कनेक्शन नहीं होगा, बीच में दिस लिगामेंट्स नहीं प्रेजेंट होंगे इन दोनों को जोड़ने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएंगे. ठीक, तो for connection between these two or connection between the proximal and distal end of the radius as well as the first row, there are other ligaments are also present. ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ से कुछ फाइबर्स यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं, ये दिख रहे हैं. ठीक है, तो आप एंटीरियर साइड में देखोगे तो इन केस ऑफ रेडियो अल्नार एंड दिस कार्पल आर्टिकुलेशन, रेडियो अल्नार कार्पल आर्टिकुलेशन, 2 special ligaments are present on the anterior side and 3 present posterior side. ठीक है, छोटे छोटे फाइबर्स दिख रहे हैं. 2 anterior side are present and posteriorly 3 are present. तो what is the role of this ligament? ठीक है, ये क्या करेंगे, that starts from the distal end of this radius and जाके कार्पल बोन में एंड हो जाएंगे. सिमिलरली एक ये दिख रहा है that also starts from the distal end of the radius and insert on the carpal bone. ठीक है, to fix that. इसके अलावा आप देखोगे these 2 are the interosseous ligament. Interosseous ligament means to connect the adjacent carpal bones. ये दिख रहे हैं दोनों,
These two are the interosseous ligaments. Interosseous का मतलब है ऊपर से कार्पल को तो जोड़ रहा है, लेकिन एडजेसेंट जो बोन्स है एक रो में पड़ी हुई है, तो टू कनेक्ट देम, टू जॉइन देम, ठीक है, तो दीज आर नोन एज इंटरऑसियस लिगामेंट. यू कैन सी टू इंटरऑसियस लिगामेंट. तो ये आप देख लोगे कौन सा वाला, ये दिस अल्नार और इंटरमीडिएट के बीच में दिख रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द रेडियल एंड इंटरमीडिएट. तो प्रॉक्सिमल जॉइंट में आप देखोगे इंटरऑसियस लिगामेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. सिमिलरली आप देखोगे हियर बिटवीन द टू रोज ऑफ कार्पल मीन्स इंटरकार्पल आर्टिकुलेशन. ठीक है, यहां भी आपको क्या दिखाई देंगे, एंटीरियर साइड में दो एंटीरियर लिगामेंट एंड पोस्टीरियर साइड में 3 लिगामेंट्स आर प्रेजेंट, एज वेल एज सम इंटरऑसियस लिगामेंट लाइक दिस. एक ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है. ठीक है, इसका एक और डायग्राम मेरे पास है, वो मैं और दिखा दूंगी. एंड हियर बिटवीन द डिस्टल रो ऑफ द कार्पल एंड द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ द लार्ज मेटाकार्पल देयर इज अनदर एंटीरियर साइड में आप देखोगे वन लिगामेंट इज देयर. ठीक है, दैट कनेक्ट्स द कार्पल डिस्टल रो ऑफ द कार्पल टू द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द लार्ज मेटाकार्पल. ठीक है, तो दैट इज द एंटीरियर लिगामेंट. ऐसे पीछे की तरफ 2 लिगामेंट होंगे. ठीक है, तो इस तरीके से पूरे लिगामेंट्स दैट लीड टू द or that supports the this bones of the joint as well as involving the movement of the joint. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो कंपोजिट जॉइंट है 3 रो बन रही है, रेडियो अल्नार कार्पल आर्टिकुलेशन, इंटरकार्पल आर्टिकुलेशन, देन कार्पो मेटाकार्पल आर्टिकुलेशन. ठीक है, इसका एक और डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ, दैट इज मोर क्लियर. देखो हियर दिस इज द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस. ये रेडियस है, ये अल्नार है. ठीक है, तो आप देखोगे एंटीरियर लिगामेंट यहाँ पे 2 है. ये देखो from the distal end of the radius to the carpal, ये दिख रहा है 12 नंबर. ठीक है, तो 2 anterior ligaments present, कोलेटरल तो अपन ने बता दिया. ठीक है, वो पूरा का पूरा जाता है. anterior ligaments आप देख रहे हैं 12 and 13. ठीक है, that extend from the distal end of the radius up to the carpal bone. Similarly दूसरा वाला भी, this is also the anterior ligament that extend from the ulna up to the carpal bone. ठीक है, तो ये हो जाएंगे anterior ligaments. तो बैक साइड में देयर आर 3 लिगामेंट्स, वो दैट एक्सटेंड फ्रॉम द रेडियस अल्ना एंड अप टू द कार्पल, बिकॉज पोस्टीरियर साइड भी सपोर्ट चाहिए. तो हियर वी आर एबल टू सी ओनली द एंटीरियर एस्पेक्ट. तो ये क्लियर हो गया आपको, एंटीरियर लिगामेंट्स फ्रॉम द रेडियस एंड अल्ना अप टू द कार्पल. 12 and 13 आप देख रहे हो. ठीक है, 12 लिगामेंट ये वाला दिख रहा है एंड 13 वन. देन इंटरऑसियस यू कैन क्लियरली सी इज 15 वन. दिस इज इंटरऑसियस प्रेजेंट बिटवीन द इंटरमीडिएट एंड थर्ड क्या है यहाँ पे, दिस इज अल्नार कार्पल. ठीक है, सॉरी ये होगा रेडियल होगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे चली जाएगा. ठीक, तो ये दिख रहा है आपको लिगामेंट इंटरऑसियस बिटवीन द 2 कार्पल बोन्स. 14th वन इज आल्सो बिटवीन द 2 कार्पल बोन्स. ये एक ही रो में जा रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं जा रहे. ठीक है, ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड. तो दीज 2 आर द इंटरऑसियस लिगामेंट. इसके अलावा एक थर्ड वाला जो जा रहा है बिटवीन द दिस अल्नार एंड द एसेसरी, दिस इज एसेसरी. ठीक है, एसेसरी कार्पल बोन है. ठीक है, तो 3 लिगामेंट इंटरऑसियस देख लिए. वन इज बिटवीन रेडियल एंड इंटरमीडिएट, सेकंड इज जो 14th नंबर है बिटवीन द इंटरमीडिएट एंड अल्नार. ठीक है, एंड ये जो जा रहा है अल्नार से लेके अप टू द एसेसरी 23rd नंबर, दिस इज आल्सो द इंटरऑसियस लिगामेंट. इज इट क्लियर? रो ऑफ द कार्पल बोन्स एंड डिस्टल रो ऑफ द कार्पल बोन्स, इसमें भी आप देखोगे ये लिगामेंट जा रहा है, ये एंटीरियर लिगामेंट कहलाएगा. ठीक है, 16th वन फ्रॉम द रेडियल अप टू द दिस, ये आ जाएगा 4th वन. ठीक है, तो 1 लिगामेंट इज दिस वन, दूसरा 19 नंबर. ये दोनों 16 एंड 19 दीज आर दी 2 एंटीरियर लिगामेंट्स. ठीक है, विच इज प्रेजेंट कहाँ पे होगा, बिटवीन द इंटरकार्पल आर्टिकुलेशन. वेयर इट इज लोकेटेड, in the intercarpal articulation, means proximal row of carpal bones and distal row. ठीक है, then horizontally placed आप देखोगे this 17th one between the 2nd and 3rd fuse and 4th carpal. You can see the 17th one is also the interosseous ligament. ठीक है, उसके बाद present between the अगर आप ये joint देखोगे carpo metacarpal articulation, you can see 2 ligaments here. ठीक है, one is 18th one. ठीक है, that is present on the anterior aspect, this 18th one and 20 and 21. ठीक है, these are also the 3 ligaments present on the anterior aspect. ठीक है, तो आपस में इनको जोड़ने के लिए इंटरऑसियस लिगामेंट में होंगे, और रोज को ऊपर से नीचे जो जोड़ रहे हैं दोज आर नोन एज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट्स. ये घोष की बुक में आप इसके नंबर याद कर लेना.
नीड नॉट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग कि कहाँ से शुरू हो रहा कहाँ खत्म हो रहा, जस्ट दिस यू नो अबाउट द नंबर ऑफ दीज लिगामेंट्स, ठीक है, कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, किस जॉइंट में है, एंड नेम द नंबर, मींस यू शुड नो द नंबर ऑफ द लिगामेंट्स, मींस एंटीरियर साइड 3 लिगामेंट्स प्रेजेंट, पोस्टीरियर साइड 2 लिगामेंट्स, इस तरीके से आपको पता होने चाहिए। ओके, यहाँ पे एंटीरियर में 2 है, पीछे की तरफ 3 है, हर जॉइंट में अलग अलग नंबर है, वो आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, तो मींस दिस नी जॉइंट जो है दिस इज द कंपोजिट जॉइंट, और साइड में यहां से आएगा दैट इज द कोलेटरल लिगामेंट दैट एक्सटेंड फ्रॉम द this radius distal end of the radius up to the proximal end of the large metacarpal, तो यहाँ होगा तो that is known as medial collateral ligament, ठीक है, that gives branches, अगर यहाँ पे होगा तो ब्रांच, एक ब्रांच देगा रेडियल को, दूसरा देगा सेकेंड एंड थर्ड फ्यूज्ड को। सिमिलरली ऑन द lateral aspect कॉमन लिगामेंट एक्सटेंड जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो that gives branch to the fibers to the this ulnar accessory as well as the second and third fused. Any confusion regarding this ligament? तो इन एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट्स को वी कैन से स्पेशल लिगामेंट्स, ठीक है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट्स हो गए वी कॉल देम एज स्पेशल लिगामेंट्स। तो आप इन, ठीक है, तो इनको आप नंबर याद कर लेना। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? नो मैम। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जॉइंट है फेटलॉक जॉइंट, पाशन जॉइंट, कॉफिन जॉइंट, ठीक है, मींस मेटाकार्पो दिस फेलेंजियल आर्टिकुलेशन, फिर इंटरफेलेंजियल आर्टिकुलेशन, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी बिकॉज सिस्मोइडियन लिगामेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग थोड़ा सिस्मोइड बोन्स के बारे में पढ़ के आएंगे, हाउ मेनी सिस्मोइड बोन्स आर प्रेजेंट इन ईच लिम्ब, ईच फोर लिम्ब, ठीक है, 4 होती तो उनकी पोजीशन थोड़ा देख के आएंगे, तब मैं उसको पढ़ाऊंगी, तो देन ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। इसको भी एक बार पढ़ लेना आप घोष की किताब से, दिस नी जॉइंट, लिगामेंट की नंबर बस याद करना एंड यू शुड नो द नेम ऑफ द जॉइंट, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 3 कंपोनेंट्स ऑफ दिस जॉइंट। Any confusion regarding this? नेक्स्ट क्लास में आज वैसे दिखाना था आपको कुछ, जस्ट वेट बेटा, ये ऐसा करेंगे कल की क्लास में जल्दी पढ़ा के आई शो द ऑल दी जॉइंट्स विच आर अवेलेबल विद अस, ठीक है। तो जो लाइव आपको दिखाना होगा जो भी जॉइंट्स है, ठीक है, तो वो मैं कल जल्दी खत्म करके फिर वो दिखा दूंगी आपको, ठीक रहेगा, जब तक आप पढ़ भी लोगे इसको। तो यू कैन सी हाउ द दिस आर्टिकुलर सरफेस आर विजिबल, ऑल्दो लिगामेंट्स पूरे प्रोमिनेंट नहीं होंगे, बहुत सारे कट गए हैं, बट यू कैन सी द हाइलिन कार्टिलेज कैसे दिखाई देगा, ब्लूइश चेंजेस प्रेजेंट, ठीक है। तो एवरीथिंग आई विल शो, वी आर हैविंग द जॉइंट्स, ठीक है, तो आई विल शो इन द टुमारोज क्लास, ओके, द जॉइंट्स ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। फेटलॉक जॉइंट, पैशन, कॉफिन पढ़ाने के बाद मैं आपको बचे समय में लाइव दिखा दूंगी, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, पहले आप पढ़ो उसको, जो भी चीज समझ में नहीं आएगी तो वो फिर मैं कल बता दूंगी, एनी लिगामेंट जो भी कंफ्यूजन होगा, बट यू हैव टू स्टडी, आप पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा उसको, ठीक है, तभी कंफ्यूजन होगा, ओके।